Student, I am Kruti, your social science teacher. Today I am going to teach you our geography portion, chapter 2, globe, latitude and longitude. First of all, I will explain what a latitude and longitude. I will show some figure. Okay. Latitude and longitude are a geographical coordinate system used for location place on the surface of the earth. On the surface, we have to question in our mind how to locate any places on earth. And with the help of latitude and longitude used for locating places on the surface of the earth. They are angular measurement expressed as a degree of a circle measure from the center of the earth. सपोज फर्स्ट पैरेलल लैटिट्यूड, यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर्स दिख रहा है, यू शो दैट दे आर द सम लाइन, इट्स कॉल्ड द लैटिट्यूड. एंड अनदर इज व्हाट इज द फैक्ट अबाउट लैटिट्यूड्स. एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. तो अनदर क्वेश्चन ऑफ इन योर माइंड, व्हाट इज इक्वेटर. ऑन द सपोज ये अर्थ है, इसके ऊपर ये वाली जो ये लाइन है सेंटर में, इट्स कॉल्ड अ इक्वेटर. Each parallel of latitude is a circle. It means say that जो भी दो latitude है उसके बीच में जो भी जो lines है वो एक दूसरे से parallel है. All parallel are not equal length. Equator at 0 degree is the most important latitude and the largest circle. Equator is the most important latitude है. Latitudes are parallel to each other. Now our another topic is that longitude. Facts about longitude. Angular distance of the place east or west of the prime meridians. ये prime meridian मतलब कि ये जो portion है पूरा, it's called a longitudes. There are the 360 meridians of the longitude. Each meridian of longitude is a semicircle. It means say that जो one meridian of longitude है वो पूरा semicircle है. All meridians are of equal length. Prime meridian is the most important longitude at 0. It means say that कि जो prime meridian है वो सबसे largest और important longitudes है. The meridians are not parallel. They converge from the equator to pole. Okay. Now we start our lesson. Second chapter, globe, latitude and longitude. In the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. In our first chapter we learn about it that earth shape is not like a sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole and blurs in the middle. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू. I will explain. नॉर्थ और साउथ पोल से वो थोड़ी फ्लैटेड है. ऑन द मिडल ब्लज मीन्स थोड़ी फ्लैट हुई होगी. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स. आपको ये इमेजिन में नहीं, आपको ये पता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो आप कैसे पता कर सकते हैं. तो यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. जो ग्लोब का जो मॉडल है उसको देख के आपको पता प्रॉपरली चल सकता है कि अर्थ कैसे दिखते हैं. वाई? बिकॉज ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. Globes may be varying size and types. There are the different size and shapes on the globes which cannot be carried easily. Small pocket globes and globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with easy. There are the some globes are very small so we can easily carried, and the globe is not fixed. It can be rotate same place as a top spin or potters will it रोटेट. यहाँ पे आपको ये ग्लोब का एक मॉडल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि हाउ कैन इट रोटेट. इट रोटेट थ्रू अ व्हील. जैसे कि व्हील प्रॉपरली रोटेट होता है उस तरीके से ये ग्लोब रोटेट होता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर सोन इन देयर करेक्ट साइज. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ऑन द अर्थ टू टेक अ प्लेस. तो वी कैन आइडेंटिफाई द यूज ऑफ द ग्लोब विच डिफरेंट countries, continent and ocean show in proper size, and this is the proper model to we can easily find out how to the all places locate on the earth. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises how to locate a place on it. It is difficult. You may know that it is difficult to locate the place on the earth.
तो हाउ कैन इट locate the place on it? We need certain point of reference and lines to find out the location of the places. तो हमें कोई particular lines की ज़रूरत होगी जिसके कारण हम particularly अर्थ पे लोकेट कर सकेंगे. तो you will notice that needle is fixed through the globe in a tilted manner. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो नीडल है वो नीडल एक टिल्टेड मैटर के थ्रू, मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और यहाँ पे साउथ पोल पे लगी हुई है. तो उसके कारण नाउ तो 2 points on the globe through which is needle passes are 2 poles, north and south pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. जैसे ही यहाँ पे जो नीडल्स लगी हुई है वो भी नॉर्थ टू पोल साउथ से ईस्ट टू वेस्ट राउंड होता है. कैसे कि जैसे कि जिस तरह से अर्थ मूव्स होती है उसी तरह से. एंड देयर आर द रियल, बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन. जैसे कि यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंट है कि ये जो ग्लोब है उसमें और प्रॉपर अर्थ में क्या डिफरेंस है कि प्रॉपर अर्थ में कोई नीडल नहीं है, वो अपने एक्सिस पे अर्थ है मूव करता है, और जो उसको नीडल के साथ मतलब कि नीडल के साथ उसका जो मैच किया गया है उसको हम बोलते हैं एक्सिस. और एक्सिस इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ. Another imaginary line running on the globe divided into 2 equal parts. This line is known as equator. There are the another line on the earth. It's called a equator, and it is the divided into 2 equal part of the earth. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. I will show northern and southern hemisphere by a figure. Suppose यहाँ पे देखिए कि suppose ये अर्थ है, तो यहाँ पे जो बीच में से ये जो इक्वेटर है यहाँ से इक्वल पार्ट कर देंगे. जो तो ऊपर वाला पार्ट है उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला जिसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहा गया है. Equal half. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate the place on the earth. यहाँ पे जो equator line है, it is very important to locate the places on the earth. Now I will show the figure through what is equator. देखिए यहाँ पे ये जो है, it's called a equator. Or parallel circle from the equator up to the poles are पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री. यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर का ये जो पार्ट्स है जो एक दूसरे से ऐसे पैरेलल में है तो उन सभी को लैटिट्यूड्स कहते हैं और लैटिट्यूड्स एक दूसरे से पैरेलल में है. एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्री, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ ऐसे. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड. यहाँ पे जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इन अ 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड टू अर्थ एंड इट वी मेजर द 1/4 ऑफ 360 डिग्री. मतलब कि यहाँ पे ये जो आधा मतलब कि यहाँ पे जो इक्वेटर है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो टोटल सर्कल का मेजरमेंट है 360 डिग्री. उसमें से उसका 1/4 पार्ट है वो जो 1/4 पार्ट है वो एक पोल होगा, उसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री. थस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क ऑन नॉर्थ पोल. यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे नॉर्थ लैटिट्यूड है और उसी तरह से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क ऑन साउथ पोल. As such, all parallel north of the equator are called the north latitude. Similarly, all parallel south of the equator are called the south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. जो latitude की जो value है या फिर north में भी हो सकती है या फिर south में भी हो सकती है. Generally, this is the indicate by the letter N for north or the letter S for south. For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located and parallel about 20 latitude. यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको नॉर्थ और साउथ पोल में कैसे मेजरमेंट किया गया है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 साउथ ऑफ इट. यहाँ पे मतलब ये कहा गया है कि नॉर्थ वाले पार्ट में जो चंद्रपुर है जो महाराष्ट्र में आया हुआ है वो सपोज यहाँ पे 20 डिग्री है नॉर्थ साइड, वहाँ पे लोकेटेड है. उसी तरह जो बेलो है हॉरिजोनेट इन ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका में, वहाँ पे वो साउथ के ये 20 डिग्री साउथ साइड है तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. तो
therefore say that Chandrapur is situated 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated in 20 degree south latitude. We see in a figure 2.2 that we move away from the equator, the size of the parallel of latitudes are डिक्रीज। यहाँ पे ये जो फिगर्स है आप उसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे ये यहाँ पे नीचे आता जा रहा है वो लैटिट्यूड की जो सतह है वो डिक्रीज होती जा रही है। As such, all parallel of north of the equator are called the non-latitude. Similarly, all parallel south of the equator are called south latitude. मैंने वो आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। अब what our another topic is important parallel of latitudes. यहाँ पे आपको सब कुछ latitudes में पूरी तरह से इस फिगर में एक्सप्लेन किया है। Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree north and the south pole 90 degree south. There are the four important parallel of latitudes. जैसे कि north और south latitudes है उसमें भी four important parallels है, fours है। उसमें से पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो है 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, थर्ड है आर्टिक सर्कल्स एंड फोर्थ है एंटार्क्टिक सर्कल। नाउ आई विल शो द फर्स्ट पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे 23 1/2 नॉर्थ डिग्री पे सिचुएटेड है। उसके बाद दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो साउथ में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली साउथ में, तो 23 1/2 साउथ इन अ साउथर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह आर्टिकल सर्कल एट 66 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर यहाँ पे है, और उसी तरह एंटार्क्टिक सर्कल एट 66 1/2 साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ट्रॉपिक ऑफ एंटार्क्टिक है, ये एंटार्क्टिक सर्कल ये भी आप यहाँ पे इजीली वो साउथ पोर्शन में, इसीलिए उसको साउथ ऑफ द इक्वेटर में कहा गया है। अब है यहाँ हमारा अनदर टॉपिक हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। The midday sun is exactly overhead at least once a year all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यहाँ पे ये कहा गया है कि साल में एक बार कभी भी किसी भी टाइम पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है उसके बीच का जो टाइम है वहाँ पे आप इजीली वो उसके बीच का टाइम में सन कोई भी टाइम पे एक एग्जैक्टली हेड पे मतलब एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है, और दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरेड जोन। यह मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हार्डबोर्ड है, यहाँ से टॉर्च से उसको अच्छी तरह से लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इन ब्राइट एंड कवर अ स्मॉल एरिया। आई विल एक्सप्लेन थ्रू अ फिगर। यहाँ पे आपको बोला है कि लैटिट्यूड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच का जो ये पोर्शन है वहाँ पे ईयर में एक बार कभी भी सन ऐसे एग्जैक्टली आ जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है। तो उस टाइम पे अर्थ पे जितने भी प्लेसेस वहाँ पे लोकेट होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम हीट होती है। The midday sun never shines overhead any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। ये Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के beyond मतलब कि जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे कभी भी सन ओवरहेड होता नहीं है। तो दिस एरिया बाउंडेड बाय द Tropic of Cancer and Arctic Circle in a northern hemisphere and the Tropic of Capricorn in the Antarctic Circle in a southern hemisphere have a moderate temperature and these are therefore called the temperate zone। यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड वाला जो पोर्शन है वहाँ पे कभी भी एग्जैक्टली ओवरहेड पे सन नहीं होता है, तो वो वाला पार्ट कभी भी ऐसा एक्सट्रीम हीट वाला नहीं होता है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कोल्ड होता है। उसी के कारण उस वाले पोर्शन को कहते हैं टेम्परेट जोन।
Areas lying between the Arctic circles and North Pole in the northern hemisphere and Antarctic circles in the South Pole in the southern hemisphere are very cold. Why? Because here the sun does not rise much above the horizon and therefore its rays always slanting and provide less heat. यहाँ पे आपको ये फिगर के थ्रू इजीली समझा देती हूँ कि यहाँ पे ये पूरा स्लैंट हुआ है, तो जो रे होते हैं वो एग्जैक्टली वहाँ से मूव नहीं होते, उसी के कारण यहाँ पे प्रोवाइड लेस हीट एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्रीजिड जोन. इट मीन्स वेरी कोल्ड. नाउ इट्स ऑल अबाउट latitudes.